نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے، اور تمہارے در سے جس نے رکھا امید کرم خدا کی ضرورت ان کو سلام کرتی ہے. اور شہنشاہی ملک سخن شہر یار فکر و فن محبوب و محب پنجتن آبروی اہل سنن پیشوائی اہل سنت آقائی نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکاری اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حجابت پہ جھک کے گلے سے لگایا پڑھی ناز سے جب دعائے محمد. محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے بارگاہ سرکار مدینہ سرور قلب حسینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں درود شریف کا نذرانہ محبت اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد معاذ الوجود والکرم والی بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ نے اعلان کے ذریعے سماعت کیا کہ آج آپ کے دیار محبت میں سرزمین بریلی شریف سے وہ عظیم ہستی جسے آج پوری دنیا حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر اعلیٰ حضرت غلِ گلزار رضویت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران رضا خان عرف سمنانی میاں صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی اور مانتی ہے، جو خلیفہ حضور تاج الشریعہ بھی ہے، بھتیجہ حضور تاج الشریعہ بھی ہے، اور نواسہ حضور امین شریعت بھی ہیں، اور شہزادہ حضور منانی میاں ہے یعنی تاج ملت ہے. آج ہمارے درمیان وہ تشریف فرما ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ رونق کے اسٹیج ہوں گے اور ان کے چہرے انور کی آپ زیارت فرمائیں گے، اور ان کے خطاب نایاب سے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کے باجوؤں کو مضبوط فرمائیں گے. حضرات، میرے بعد شاعر اعظم ہندوستان شہنشاہ ترنم حضرت زمزم فتح پوری صاحب تشریف لائیں گے اور ان کی نورانی زبان سے اپنا تو منقبت کے اشعار سماعت فرمائیں گے. حضرات، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ایک مرتبہ محبت بھری انداز میں سبحان اللہ کہہ دیں اور عقیدت سے بول دیں سبحان اللہ. حضرات، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا وقت مجھے ملا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں میری تقریر ختم ہو جائے گی، پھر پروگرام اور آگے بڑھے گا. حضرات، آج کے اس ماحول کو دیکھ کر اور اس معاشرے کو دیکھ کر آج آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں، کائنات کی کسی کونے، کسی خطے، کسی قصبے، کسی علاقے، کسی دیہات، کسی شہر میں آپ نظر ڈالیں، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے میں منصوبوں کے ذریعے، لٹریچر و کتابوں کے ذریعے اور میٹنگ کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے آج اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہر جانب سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. حضرات، آج کے اس غریب نواز کانفرنس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان علماء کرام کے مقدس قدموں کو چومتے ہوئے میں آپ کے دل و دماغ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس پیغام کو آپ اپنے گھروں تک لے جانا اور اپنی ماں بہنوں کو بھی سنانا. ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم تلوار والے نہیں ہو، تم محبت والے ہو. تم سرکار غریب نواز کے ملک میں رہتے ہو. یاد رکھنا، جس وقت سرکار غریب نواز نے قدم رکھا تھا یہاں تو نکلتے ہوئے شہاب الدین گوری سے ملاقات ہوئی تھی. تب شہاب الدین گوری نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا کہ چہرے کی شباہت بتا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہو تم. جب شہاب
शहाब उद्दीन गौरी ने इतना कहा तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बेशक तुमने पहचान लिया। कहा हाँ पहचान लिया। न सरकार गरीब नवाज सफी शहाब उद्दीन गौरी ने कहा कि आप आए किस लिए हैं? तो आपने फरमाया कि जो काम तुम न कर सके हो वो काम मैं करने आया हूँ। जब सरकार गरीब नवाज ने इतना कहा तब शहाब उद्दीन गौरी ने पलट कर कहा था अगर इजाजत हो तो आपके कजाबे पर आपका कजाबा देख लूं। तब सरकार गरीब नवाज ने इजाजत दी। अब शहाब उद्दीन गौरी आपके ऊंट के करीब गया, कजाबे पे नजर डाली तो कजाबे में कुछ नहीं था, बस एक मुसल्ला था, एक अमामा शरीफ था, मिट्टी के दो बर्तन थे, एक प्याला और एक प्लेट था, एक लोटा था, एक टूटा हुआ असा था और एक तस्बीह थी। ये सारे सामान हजरत गरीब नवाज लेकर आए थे हिंदुस्तान की धरती पर। जब शहाब उद्दीन गौरी की नजर पड़ी तो कजाबे को बंद किया और बंद करने के बाद अपने आंखों में आंसू भर लिया और आंसू भरने के बाद सरकारी गरीब नवाज के करीब आया और आपने सरकारी गरीब नवाज से कहा कि हो सके तो नाम भी बता दो। अब सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरा नाम तो हसन था लेकिन मदीने वाले आका ने मेरा नाम मोइनुद्दीन रख दिया है। जब इतना कहना था तो शहाब उद्दीन गौरी ने फिर पलट के कहा था न आए कहां से हो, न आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हो। न किसने भेजा है, न किसी दुनियादार ने नहीं भेजा है, किसी दुनियादार ने नहीं भेजा है बल्कि मदीने से मदीने के ताजदार ने भेजा है, अहमद मुख्तार ने भेजा है। अब इतना कहना था शहाब उद्दीन गौरी ने कहा मैं हजारों तलवार लेकर आया था, हजारों तीर लेकर आया था, कई भाले लेकर आया था, कई हथियार लेकर आया था, इसके बावजूद मैं शिकस्त खा के जा रहा हूँ। मैं सारी तलवारों को दरिया में बहा के जा रहा हूँ। मैंने कजाबे में देख लिया कुछ नहीं है आपके पास, कोई हथियार नहीं है आपके पास और आप इस्लाम फैलाने की बात करते हैं। तब सरकार गरीब नवाज ने पलट कर कहा था अभी आप चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद आप खुद आइएगा खैरियत लेने के लिए। कहा मतलब ये है कि तुम्हारे आने में और मेरे आने में फर्क है। कहा मतलब न तुम आए थे तो तुम्हारा भरोसा दीन पर था, तुम्हारा भरोसा हथियार पर था, लेकिन मैं आया हूँ, मैं कोई तलवार लेकर नहीं आया हूँ, मैं कोई हथियार लेकर नहीं आया हूँ, कोई सामान लेकर नहीं आया हूँ। अब मैं आया हूँ तो मेरा भरोसा अहमद मुख्तार के किरदार का भरोसा लेकर आया हूँ। अपने सीने में नबी की इश्क का चिराग जला के आया हूँ। तभी तो बरेली की सरजमी से आला हजरत पुकार उठे, ऐ इश्क तेरे सदके जन्ने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप बंगाल की सरजमी पर रहते हैं, कलकत्ता की सरजमी पर रहते हैं। आज पूरी दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, मैसेजेस के जरिए आज तुम्हें परेशान करने की कोशिश ही है, लेकिन आपको इन चीजों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एसएमएस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के कदमों में सर रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के कदमों में मेमोरेंडम पेश करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर लेना, तुम अपने हाथों में मसलक आला हजरत का झंडा ले लेना, अपने सर पर गरीब नवाज की मोहब्बत का अमामा बांधकर, अपने सीने में नबी की मोहब्बत का चराग जला के मस्जिदों की जानिब रवाना हो जाना। जिस दिन तेरा सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा, जिस दिन तेरा सर खुशू व खुजू के साथ खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, जमाने की सारी ताकतें तेरे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने पुकार कर कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हर करे है, ये जहां मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम मोहब्बत वाले हैं। हमारे नबी ने इंसानियत का दर्स अता फरमाया है, इंसानियत का दर्स दिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अच्छे बनो, सच्चे बनो, नेक बनो, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। ऐसा ना हो कि दुनिया देख कर तमस्कुर करे कि ये है मुसलमान। जब दुनिया की नजरें तुम पर पड़े तो दुनिया फख्र से कहे कि ये है मुसलमान। जब लोगों की नजरें तुम पर पड़े तो लोग तुम्हारे करीब आ जाए और आकर ये
कहने पर मजबूर हो जाए कि जब ये इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा, इसका पैगंबर कितना अच्छा होगा, इसका रसूल कितना अच्छा होगा। हजरात, इन चीजों को देखकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों परेशानी आती है और आएगी। आप याद कीजिएगा, आप जब नमाज पढ़ेंगे तो मुश्किलें आती है। आप जब हुज्जाज से पूछिएगा, जब वो हज में जाते हैं तो मुश्किलें आती है, लेकिन जो मुश्किलों से टकरा के दीन का काम कर लेता है कामयाबी उसी को मिलती है, रब की रहमत उसी पर बरसती है, रब ताला उसी को नवाजता है। आप याद कीजिएगा, हिंदुस्तान ही की आप तारीख ले ले, मुसीबतों से हजरत गरीब नवाज दो चार होते रहे, मुश्किलों से हमेशा दो चार होते रहे, लेकिन बाद में अल्लाह ने इज्जत किसे दी? सरकार गरीब नवाज को इज्जत दी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन सरकार गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन पर एक बादशाह पैदा हो गया जिसका नाम था अकबर, जिसने दीन इलाही कायम किया। लेकिन अकबर की अकबरियत का खात्मा करने के लिए रब ताला ने मुजद्दिद अल-फिसानी को पैदा फरमा दिया और अकबर के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि अकबर की अकबरियत का खात्मा कर दिया। अब और आगे बढ़ो, जमाने में कुछ और ताकतें आ गई, फिर कुछ लोग आ गए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप याद कीजिएगा, वो जमाना था 1857 का, जब अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती पर आ गए। ये तन के उजले मन के काले धीरे धीरे हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा जमाते जमाते जब 1857 का जमाना उन्हें नसीब हो गया, तब उन लोगों ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि सुनो, हिंदुस्तान की जमीन भी हमारे कब्जे में है, हिंदुस्तान के अवाम भी हमारे कब्जे में है, लेकिन एक ताकत के बारे हम पूछना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत है हमारे सामने, क्या तुम उस ताकत के बारे में बता सकते हो? हम उस ताकत के बारे में पूछना चाहते हैं। तब उन लोगों ने कहा ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तब अंग्रेजों ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसी ताकत है कि हम उनके गले पर खंजर चलाते हैं तो वो रोते ही नहीं है, हम उन पर पत्थर बरसाते हैं, जब करीब जाकर देखते हैं तो उन पर धूल बन के बरसता है, हम उन पे पैरों पर कांटा डालते हैं तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है। ये बात समझ में आता ही नहीं है, आखिर ये ताकत है तो है कौन सी ताकत, आखिर ये कौन लोग है? तब एक शख्स ने पुकार कर कहा था, अरे तुम जानना चाहते हो तो सुनो, उस कौम का नाम है कौम मुस्लिम, और उस ताकत के बारे जानना चाहते हो तो वो कोई दुनियावी ताकत नहीं है, किसी की दी हुई ताकत नहीं है, बल्कि उस ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। वो इश्क़ रसूल की ताकत है जो मुसलमान आज यहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप अपने सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जला लेंगे, नबी के इश्क का चिराग जला लेंगे तो आप कल मैदान महशर में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस एक आखिरी बात बता के गुजर जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम इस ताकत को खत्म करेंगे, तो खत्म करेंगे कैसे? न मुसलमानों को खरीद लेंगे। अब मुसलमानों को खरीदने के लिए एक टीम आई, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ मौलवी उस जमाने में भी बिक गए थे। याद रखिएगा, मौलवी के भी दो चेहरे होते हैं, एक होता है बिकाऊ मौलवी और एक होता है इश्क के सदके जन्नत को खरीदने वाला मौलवी। लेकिन याद रखना, जो बिके थे मौलवी, वो मेरठ वाले थे, वो दिल्ली वाले थे, वो लखनऊ वाले थे, लेकिन याद करना वो बरेली वाले नहीं थे, वो किचोचा वाले नहीं थे, वो मारे हिरा वाले नहीं थे, वो बिलग्राम वाले नहीं थे, वो बंगाल के सुन्नी मुसलमान नहीं थे। बिक गए मौलवी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब मौलवी बिक गए तब उन लोगों ने सोचा कि हमारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, मुझे कुछ और मौलवी चाहिए। तब किसी ने मशवरा दिया, तुम्हें हजारों को खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, तुम उन्हें खरीद लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम उसे खरीद लेंगे। अब एक टीम आई बरेली शरीफ आला हजरत को खरीदने के लिए। हजरात
टीम आई बरेली आला हजरत को खरीदने के लिए। अब आला हजरत के सामने अंग्रेज मौजूद है। आला हजरत ने फरमाया बताओ क्या कहना चाहते हो। तब उन लोगों ने कहा मुझे बस आपके कलम की नोक चाहिए। तब बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा था, ललकार कर कहा था, जो ठिकरे वाले थे बिक गए, अहमद रजा तो पहले ही बिक चुका है। न किसके लिए बिका है, न किसी दुनियादार के लिए नहीं बिका है, बल्कि मदीने के ताजदार के लिए बिक चुका है, अहमद मुख्तार के लिए बिक चुका है। अब टीम खामोश, टीम लाजवाब, अब सबके सब वापस। लोगों ने मशवरा किया हम करें तो क्या करें, अहमद रजा ने बिकने से इनकार कर दिया है। अब लोगों ने मशवरा किया कि अहमद रजा को कत्ल करा दो, अहमद रजा पर नाकाबंदी कराओ। अब मुखालिफत की दीवारें खड़ी कर दी गई है, नाकाबंदी कराई गई है। अब कोई नहीं है अहमद रजा तेरे साथ। अब गैर तो गैर थे ही, अपने भी पैसा लेकर मुखालिफत में खड़े हो गए। लेकिन लाखों सलाम हो उस बरेली के मुजद्दिद पर, पैरों में लर्जिश नहीं आई, तन्हा मैदान में खड़े रहे आला हजरत। अब आला हजरत अब नजर दौड़ा रहे हैं, कोई नहीं है अहमद रजा तेरे साथ। अब आला हजरत ने आलम तसव्वुर में अपनी पेशानी को झुकाया है। अब किधर झुकाते हैं, मदीने के जानिब झुकाते हैं और इस्तिगासे की सूरत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। एक तरफ आदाई थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हो जाए रसूल से आवाज आई अहमद रजा किसने कह दिया तन्हा है तू, मेरी रहमत तेरे साथ है। अब सरकार आला हजरत अपनी पेशानी को झुकाते हैं बगदाद के जानिब, अर्ज करते हैं एक तरफ आदाई थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत पाक की नुसरत ने पुकार के कहा अहमद रजा किसने कह दिया तन्हा है तू, अब्दुल कादिर की हिमायत तेरे साथ है। अब आला हजरत अपनी पेशानी को झुकाते हैं हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल हजरत ख्वाजा के जानिब, अर्ज करते हैं एक तरफ आदाई थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। रोज़ाए गरीब नवाज से आवाज आती है अहमद रजा किसने कह दिया तन्हा है तू, मेरी हिमायत तेरे साथ है। अब रसूल की रहमत मिली, हौस की नुसरत मिली, हजरत गरीब नवाज की हिमायत मिली, हजरत साबिर पिया की नुसरत मिली, मारे हरा वालों की हिमायत मिली। अब आला हजरत फिर से अपने कलम को उठाते हैं, हम मैदान में खड़े हो गए। अब ना तो तलवार का डर है, ना तो नेजे का डर है, ना अंग्रेजी कुत्तों का डर है, ना जमाने के टिकाऊ मौलवियों का डर है। अब आला हजरत लिखते लिखते उस मंजिल पर आकर फैज हो गए कि शायद ने पुकार कर कहा था कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चला। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा मोहतरम सामईन इकराम, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हमें आपको आज भी ये सोचना होगा कि हम चले तो कैसे चले, आज हम किसके किरदार पर अमल करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुमने अपने सीनों में नबी की मोहब्बत का चिराग जला दिया तो आज तुम यहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आओगे, कल इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब बातें यहीं पर खत्म, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो इसके आगे और गुफ्तगू होगी। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते, हमें सिर्फ महसूस करो जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। और हमेशा यही दुआ करना, यही तमन्ना करना कि कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।